Hello, welcome to the YouTube channel Botany for All. In today's video, we are going to discuss about a process in the plants that is the leaf abscission. So leaf abscission is simply a process of separation or the abscission of the leaf particularly. Plants separate several things from themselves. Okay, separate like flowers. The flowers may be separated after the fertilization or prior to the fertilization rarely. The fruits are separated. Okay, some kind of the old roots maybe get separated, or even in some plants the stem is separated, and most common among the separation are the leaves. The leaf separation or the fall of leaf naturally, the natural fall off of leaf is called leaf abscission. So leaf abscission, since it is a natural fall off, the fall off may be to mechanical factors, like if there is a high wind, so even the young leaves may get fall off. Okay, extreme conditions, and that is the exception condition. Otherwise, the natural fall off is called leaf abscission. So it is an outcome of senescence. The process of leaf abscission, that is the separation of leaf mainly, because we are talking about the leaf abscission. So that is outcome of the senescence. Senescence means natural aging. In the simple words, we can say the old age. Okay, budapa हम कह सकते हैं in the plants. So senescence particularly in the leaves leads to the process of leaf abscission. If a leaf particularly become old, it is not young. So the work of leaves is mainly the photosynthesis. The leaves are photosynthetic. So the efficiency of photosynthesis in the old leaves is very less, and they are getting food from the young ones. So they are kind of giving harm to the plant. The old leaves which are not producing plant, and even they are using the food, they are decreasing the efficiency of plants. So the plants also require, the plants need that they will fall off or they will separate so that the efficiency can be maintained. So it is a natural process. It is not an harmful process. It is an beneficial process. Okay, beneficial process, because to increase the efficiency of plant, so that there may be young leaves, or there may be intern of the young leaves, they can highly photosynthesize, or they can produce new food for the plant, instead of getting very more number of the food, much food, and producing less number of the food, because leaves are photosynthetic. So it is a kind of physiological phenomena, anatomical phenomena, that is done mainly due to the development of different layers and involve different hormones. So we will discuss both of the aspects, the anatomical aspects as well as the physiological aspects about the leaf abscission. So first thing is that only old leaves get natural abscission. Because there are many factors that develop for the abscission of leaf. In the young leaves, the abscission is not seen. Okay, no abscission. Because in the young leaves, there are enough nutrients. Cells are very young, cells are not senescent. So there are enough nutrients, mobilization, the nutrients, as well as much number of the chlorophyll. So they are highly photosynthetic. Since they have chlorophyll and have the nutrients, they can produce high amount of the oxygen. Oxygen is a plant hormone. So there is a high amount of oxygen in the young leaves. Oxygen prevent leaf abscission. There is no requirement of the oxygen through the transport from the tip region, although that oxygen is transported also to the from the tip region to the leaf, but still leaf is also producing the oxygen itself, its self production. So in the young leaves, there is a high amount of the oxygen. Oxygen is a plant hormone which retard or which block the abscission. That's why the young leaves does not undergo the abscission, whereas older leaves, जो आपके old leaves होते हैं, they lack nutrients because the cells are now old. So they also lack oxygen. They also have less oxygen. And whenever the oxygen is less, there accumulate the another hormone, that is the ethylene. Okay, ethylene is another hormone which is also called fruit ripening hormone. It initiates the formation of hydrolytic enzymes, which we will discuss later in the physiological aspect in the same video. So ethylene promotes the abscission.
So if I talk about mainly the two hormones, one is the auxin that blocks abscession, another is the ethylene which initiates the abscession. Okay, directly the ethylene initiates the abscession, and one more hormone, that is the abscisic acid, that also promotes the abscession. Okay, abscisic acid, or we can say the ABA. So these two hormone causes the abscession, whereas auxin inhibit the abscession, whereas cytokinin also inhibit the abscession. Cytokinin blocks the senescence or delay the senescence. Delay करता है, we cannot say the block. Cytokinin blocks the senescence, तो बुढ़ापा जो है delay हो रहा है, senescence delay हो रहा है, that's why cytokinin also inhibits the abscession. Senescence नहीं होगा तो abscession भी क्या होगा, late होगा. These are four hormones which are mainly involved during the process of abscession. Ethylene and ABA promote abscession. It doesn't mean that ethylene and ABA are negative hormones, that they are causing harm to the plant. This is not an harmful process, as I told you earlier. So leaf abscession, that is mostly the separation of leaf, or we can talk in terms of the simple definition, that is the separation of leaf. It is very common in deciduous forest, and there we can look at the, if we look at the deciduous forest, there is a remarkable appearance of the leaves, that all of the leaves have suddenly fall off during the autumn season. Particularly deciduous forest की बात करें तो एक साथ सारे लीफ जो है fall off होते हैं. So that we can observe easily. So there the leaf abscession is very common, and that can be observable. In terms of the evergreen forest, where there is no remarkable fall of the leaf in a particular season, जहां पे एक सीजन में ही नहीं fall off होते, वहां पे क्या होता है, cyclic movement होता है. For example, let's say 10,000 leaves है किसी plant पर. If today 10 leaves fall off, so there will be no remarkable evidence, or there will no be remarkable viewing of the leaves that they have fallen off. एक साथ 10, एक अगर 10 पत्ते गिर भी जाते हैं एक ही दिन में, तो वहां पे नोट नहीं हो पाएगा कि 10,000 में से 10 लीफ जो है वो फॉल ऑफ हो चुके. सो देयर इज अ साइक्लिक मूवमेंट. आज 10 लीफ फॉल हुए, नए 10 लीफ हो सकता है आ जाए. So there is a constant falling of the leaves or the constant accession, whereas in the deciduous forest there is a cyclic movement. Particularly in a season like autumn, all of the leaves suddenly fall off. Whereas in the evergreen forest, the leaves also get senescent, but not at the regular intervals. Some of the leaves get senescence today, or some will got senescence after the 2 or 3 years. So this is the difference between the evergreen forest and the deciduous forest. In the deciduous forest, there is a remarkable appearance of the leaf fall off suddenly, particular in a season that is called the autumn season mainly. So we know that the leaf is attached to the main stem or the branch. For example, this is a stem, or this may be a branch. Okay, so leaves are directly attached to the stem. Let's say this is one leaf. This part of leaf is called petiole. The stalk of leaf is called petiole. Leaf की जो डंडी होती है उसको petiole बोलते हैं. This part, this is called lamina, which captures the sunlight for the photosynthesis. And at this portion there is a leaf base. Okay, leaf also protects a bud in the axil of their petiole or the axis. This is called axillary bud. It is having meristematic cells which will later form any flower or the branches. So this is the kind of the structure of leaf. If it is directly present on the stem, or same, the leaf may be present on this branch also. Similarly, there will be a leaf base, the petiole, and the leaf. So once there will be a process of leaf abscission, it is not a sudden process that today plant decided that we have to undergo the abscission and suddenly the leaf got fall off. For the process of leaf abscission, there are certain anatomical changes. At the cell or tissue level, there are some changes appear which causes the abscission process. So there a particular zone of the cells appear which is called abscission zone. The abscission zone consists of the two things. One are the separation layer,
which is the first component, or we can say the outer component. This we are only talking about the abscission zone, that how a zone develops in the leaves which have to go under the abscission in a near time. And second thing is protective layer. Both of the components, the protective layer, or we also say is like a scar layers. These two components are forming a common zone that is called the abscission zone. Outer जो बनता है वो separation layer बनता है. Okay, separation layer से below बनते हैं protective layer. For example, red are protective and green are separation. So what is the benefit of the protective layer or the separation layer is that once the separation layer will separate the leaf from plant, leaf will fall off into the ground or somewhere else. Okay, then this protective layer will protect the plant from the other pathogen, any kind of the virus, fungus and all that, or the extreme conditions. If after the separation there will be a open space for pathogens or anything to enter into the vascular bundles directly. Okay, suppose if leaf is cut from here and there create a open space through which a virus can enter directly into the stem. So that will be a stress condition for plant. So to prevent that stress condition or to prevent from that pathogen attack, the protective layers are required. So the complete abscission zone is responsible for the abscission of leaf, and itself the abscission zone is made up of two things: separation layer, which will cause separation of the leaf lamina or the petiole from the plant, and the protective layer, which will again which will further protect the plant from that place from the leaf has been fallen off. Because if there will be no protective layer, there will be an open space through which the pathogens can attack the plant. That's why there are total two layers. One are the separation layer and another are the protective layer. So if I talk about the site of abscission, so in simple leaves which does not have any incisions in the lamina. So in the simple leaves, the site is beneath the petiole. This is, for example, petiole. This is lamina. Okay, petiole is attached to the main stem. Suppose this is main stem. This is leaf base. This is petiole. Okay, this is axillary bud, that bud. So the abscission zone develops beneath the petiole in this region. This black is the abscission zone. In the simple leaves, the most common zone is beneath the petiole. Petiole से नीचे बनता है abscission zone. In the compound leaves like acacia, कीकर जो होता है उसके अंदर compound leaf मिलती है. This is rachis और यहाँ होते हैं leaflet. जो आपका लमाइना था उसके अंदर इंसिजन्स हो गए हैं एक तरह से, उन्होंने लीफलेट बना लिया है. ओके, दिस इज लमाइना. यहाँ पीटियोल होगा लीफ का. सपोज दिस इज पीटियोल, ये लीफलेट है, नॉट लीफ. फिर यहां होगा मेन स्टेम. ओके, तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं. इन केस ऑफ द कंपाउंड लीफ, इन केस ऑफ द सिंपल लीफ देयर इज ओनली वन केस, दैट इज बीनीथ द पीटियोल. कंपाउंड लीफ में दो केस हो सकते हैं. या तो जो एब्सेशन जोन बन सकता है वो यही बनेगा, कहां पे, पीटियोल से नीचे, सेम लाइक सिंपल. पहला केस जैसा सिंपल में हो रहा था पीटियोल के नीचे. दूसरा केस हो सकता है कि बीनिथ दी लीफलेट. ठीक है, हर एक लीफलेट के नीचे हो सकता है यहां पे एब्सेशन जोन बने टू सेपरेट दी लीफ. सो देयर आर टू केसेस इन द कंपाउंड लीफ, beneath the leaflet or beneath the petiole, which is very common, simple as well as in the compound leaf. So these are the site of abscission zone. Abscission zone is consist of the two things: separation layer and protective layer. Protective layer form inner because outer to them are separation layer which will separate the leaf. Leaf will fall off through the separation layer because it has been cutted from other plant due to the separation or the abscission layer. It is also called abscission layer. Only the separation layer is called abscission layer because it is actually causing the abscission. Separate plant से यही कर रहा है. Okay, and combinedly the abscission layer or separation layer plus protective layer is called abscission zone. So what happens is, suppose this is the main stem.
Let's say these are the branches. Let's say this is lamina. We are treating that a leaf is attached directly to the main stem. This is stem. Okay. A stem, anatomically, we should know that the outermost layers are epidermis. In the center, there is cortex. And in the most center, there are vascular bundles. Suppose these blue are vascular bundles. These blue are vascular bundles, xylem and phloem. Or the vascular tissues, xylem and phloem. Okay. The vascular tissues of stem are connected to the vascular tissues of the leaf. Okay. लीफ के अंदर ये vascular tissues की वजह ही veins या veinlets दिखते हैं. You should better study the anatomical tissues in the prior videos for better understanding of the anatomy. So this is cortex portion of the ground tissue system. This is vascular tissue system, and outermost is the epidermal. This is the stem. This is petiole, this particular region. The color I am drawing is, let's say this brown color, or we can take this orange color. This orange color portion is the petiole. The petiole I have drawn somehow thick to understand the things. This particular region is lamina. This particular region is petiole, the stalk of leaf. So the abscission zone appears below the petiole, as I told you earlier. Okay, so below the petiole means at this place the abscission zone appears. This black is the abscission zone. Okay, the abscission zone starts forming from periphery to center. This thing to be noted. Okay, periphery to the center means firstly it is formed at this places at periphery. So from outer to inner it is forming, and it is forming like this from both the sides, from periphery towards the center. That's how the abscission zone is formed. This thing is all to be remember. Why this abscission zone is formed, that we will discuss in the physiology. So there abscission zone is now created. In this abscission zone also, the separation layer particularly is outer. This is, for example, separation layer or the abscission layer, which will cause actual separation. And below that, there will develop protective layers. If I'll take the green color, this green color, they are protective layers. So what will happen? This separation layer have impermeable compounds. Okay, it will block the nutrients movement. See, this is vascular tissue system. The blue region is the vascular tissue system. It is a very important point that primary vascular bundles, primary vascular tissues like xylem, primary xylem and primary phloem got blocked. ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएगा, क्योंकि जाइलम मिनरल न्यूट्रिशंस को और वाटर को ले जाता है, फ्लोएम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ले जाता है, कुछ मिनरल्स को फ्लोएम भी ले जाता है. ठीक है, ऑर्गेनिक है जो. सो फ्लोएम एंड जाइलम बोथ गेट ब्लॉक ओनली प्राइमरी. सो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई तो कट ऑफ हो जाती है, बट डायकॉट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है. तो स्टेम के जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है वो भी लीफ के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो ओपन रहते हैं. ठीक है, सेकेंडरी बंडल्स ओपन रहेंगे बट प्राइमरी बंडल्स क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे. तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन लेयर है, ठीक है, सेपरेशन लेयर की वजह से न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहे, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स जा पा रहे हैं, इसी वजह से सेनेसेंस हुआ है, इसी वजह से बुढ़ापा आया था. ठीक है, या हम कह सकते हैं सेनेसेंस की वजह से ही एब्सेशन होने वाला है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई यहाँ कट ऑफ हो चुकी है, एक लेयर बन चुकी है एब्सेशन लेयर, जिसकी वजह से अब ये जो लीफ है ये अलग होने वाला है प्लांट से इन अपकमिंग फ्यूचर. सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू, देखिए प्राइमरी ब्लॉक हुए हैं, फिर बताता हूं मैं आपको, ओपन रहते हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, बट उनसे बहुत कम न्यूट्रिएंट्स जाते हैं. तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जाते रहते हैं और थोड़ा बहुत लीफ जो है वो सर्वाइव करता रहता है कुछ दिनों के लिए. ठीक है, धीरे धीरे ये जो सेकेंडरी बंडल्स है ये भी ब्लॉक होने लगते हैं, इनके अंदर फिलिंग होने लगती है, मटेरियल्स फिल होने लगते हैं.
ठीक है, तो इनकी ब्लॉकेज को हम टिलोसिस बोलते हैं, पर्टिकुलरली जब सेकेंडरी वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, यानी सेकेंडरी जाइलम जब ब्लॉक हो जाता है तो उसको टिलोसिस बोलते हैं। कुछ गम सब्सटेंसेस, ठीक है, गमी सब्सटेंसेस भी डिपॉजिट हो जाते हैं, ये भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो जैसे ही एब्सेशन हो जाएगा, सेपरेशन लेयर की वजह से क्या होगा, ये लीफ फॉल ऑफ हो जाएगा। सी दिस विल हैपन, सेपरेशन के बाद एब्सेशन हो गया, लीफ फॉल ऑफ हो गया, तो फाइनली सेपरेशन लेयर भी डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, बट यहां पे देखिए सेपरेशन लेयर के बाद कैविटी बच गई, अगर प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती, ये ग्रीन नहीं होता, तो यहां ओपन कैविटी बच जाती जहां से एंटर कर जाते पैथोजेंस। तो यहां एक सेपरेशन लेयर बनी, जो क्या करती है, सेपरेशन लेयर के अंदर थिकनिंग्स डिपॉजिट हो जाती है, थिक सब्सटेंसेस। यानी ये सब जो थिक प्रोटेक्टिव लेयर बनी है, ये बनी ही ऐसी सेल्स की है, पहले पैरेन्काइमा थे, उन पैरेन्काइमा ने अपने अंदर सेकेंडरी थिकनिंग्स वाले कंपाउंड जैसे लिग्निन, ठीक है, जैसे टैनिन, जैसे गम्स, ये सब अपने अंदर डिपॉजिट कर लिए, और ये पैरेन्काइमा थिक हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे जो है आपका थिक होने की वजह से ये ब्लॉक हो गया एक तरह से। थिकनिंग जो होती है प्राइम, यानी जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, वो प्राइमरी तो होती ही होती है हर एक एब्सेस लीड में। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा थिक करना हो तो सेकेंडरी ग्रोथ भी हो जाती है उसमें, यानी सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाती है। प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर तो होती ही होती है सभी प्लांट्स में जहां पे एब्सेशन हुआ है, कहीं कहीं पे ज्यादा थिकनिंग करनी है तो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर भी बनती है। तो प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर तो बनती है इन पैरेन्काइमा से, जो अपने अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं सेकेंडरी कंपाउंड्स को। सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर बनती है सेकेंडरी ग्रोथ से, यानी अगर सेकेंडरी बननी है तो कुछ प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर्स दोबारा से सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक होकर, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक हुई वो कॉर्क कैम्बियम बनाएंगी। कॉर्क कैम्बियम पेरिड्रम बनाता है, हमें पता होना चाहिए, हमने सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ा भी है। तो कुछ प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर ही जो सेकेंडरी बनाना चाहती है और थिक करना चाहती है इस लीफ, जो टूटा हुआ लीफ है, इस प्लेस को, तो क्या करती है, वो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाएंगी। कैसे बनाएंगी कि कुछ प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक हुई, दोबारा कॉर्क कैम्बियम बनेगी। कॉर्क कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवाइड करके पेरिडर्म बनाता है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटेक्टिव के ही बाहर, प्राइमरी प्रोटेक्टिव के ही बाहर एक और सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ताकि और थिकनिंग हो जाए यहाँ पे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, स्टेम की जो पेरिड्रम थी, स्टेम का जो बार्क था उसी के अंदर मिक्स हो जाता है। पहले तो देखिए जहां से एब्सेस हुआ ना लीफ, वो स्टेम पे दिखेगा अलग से मार्क, स्कार की तरह दिखेगा, एक धब्बा, कि यहाँ पत्ता था और टूट चुका। वो धब्बा दिखने का मतलब ये है कि वहां प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी, क्योंकि प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनी होती तो यहां से पैथोजन एंटर कर जाता। फिर अगर देखिए और थिकनिंग बढ़ जाती है, सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाती है, या पेरिडर्म जिसको बोल सकते हैं, तो धीरे धीरे ये जो स्कार है ये स्टेम की बार्क में ही मिक्स हो जाते हैं, जिससे फिर हमें पता ही नहीं चलता कहां से पत्ता टूटा था। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर बनती है इस तरह से। तो क्या प्रोटेक्टिव लेयर है, क्या सेपरेशन लेयर है, दिस वी थिंक शुड नो, और दोनों मिलकर क्या होते हैं, एब्सेशन जोन। ठीक है, तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म था एनाटॉमिकली कि कैसे एब्सेशन लेयर डेवलप होती है एनाटॉमिकली। पीटियोल के नीचे जनरली डेवलप होगी, यहाँ मेन स्टेम है तो पीटियोल के जस्ट नीचे एब्सेशन लेयर डेवलप होती है। ओके, एब्सेशन लेयर में भी जो मेन आपका एब्सेशन जोन में भी जो एब्सेशन लेयर थी या सेपरेशन लेयर थी, वो आपका इसी वजह से डेवलप होती है क्योंकि आपके ब्लॉकेज होते जाते हैं। यहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स थे, अगर एक्चुअल मैकेनिज्म की बात करें तो जो आपके पेरीफेरी से पहले तो सेंटर की तरफ बन रही है, ये पीटियोल है, इसमें बाहर से बनते हुए आ रही है ऐसे सेंटर की तरफ, और फिर फाइनली पूरा एक एब्सेशन जोन बन गया जो प्लांट को, इधर वाले प्लांट को, अब जो इस साइड पार्ट है उसको कट ऑफ कर रहा है, किससे, मेन स्टेम से। ठीक है, अब मेन स्टेम से कट ऑफ ही हो गया, सारी चीजें मिलना बंद हो गई, तो ये वाला जो एरिया है अल्टीमेटली क्या होगा, फॉल ऑफ तो होगा ही, क्योंकि ये बिछड़ गया मेन स्टेम से इस लेयर की वजह से, सेपरेशन कर दिया, जिस वजह से यहाँ की चीजें यहाँ नहीं जा पा रही, यहाँ की चीजें यहाँ नहीं आ पा रही, तो इसका क्या होना है, फॉल ऑफ होना है। तो एनाटॉमिकल चेंजेस क्या आते हैं पर्टिकुलरली, देखिए एक बार समझेंगे हम। जब एब्सेशन लेयर बन रही होती है या सेपरेशन लेयर जब बन रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए ये मेन स्टेम है, ठीक है, ये ब्रांच है, सॉरी ये पीटियोल है, ये लमाइना है, यहाँ पीटियोल के नीचे एब्सेशन लेयर बना है, तो पीटियोल की जो सेल्स हैं ये लूज होने लगती हैं,
ठीक है, लूज करता है इनको एंजाइम्स, अभी हम हार्मोनल एक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। एंजाइम जैसे कि पैक्टिनेज, जैसे कि सेलुलेज, ठीक है। पैक्टिनेज जो है मिडल लैमेला पैक्टिन का बना होता है, उसको तोड़ देगा। मिडल लैमेला की वजह से ही तो दो प्लांट सेल आपस में अटैच होते हैं। अगर मिडल लैमेला ब्रेक डाउन होता जाएगा ये, तो सेल्स दूर दूर हो जाएंगे इस तरह से। दूसरा सेलुलेज, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, तो उसको भी तोड़ दिया जाएगा तो जो है कॉम्पैक्ट नहीं रहेंगी, सेल्स दूर दूर हो जाएंगी और ब्लैबिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है एब्सेशन जोन में, यही होता है यहाँ पे पीटीओल को वाइड करें तो, कि बाहर की तरफ से सेल्स जो है पहले वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से सेल्स का एक लूज मास बनता है। फिर ये जो सेल्स है यहाँ पे पैरेन्काइमा ज्यादा डेवलप होती है। यहाँ पे हार्ड टिश्यू जैसे स्क्लेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चेंजेस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पैरेन्काइमा डिपॉजिट कर लेती है थिकनिंग्स को। थिकनिंग्स जैसे सेलुलोज तो था, वो तो वाटर के लिए परमिएबल था, बट लिग्निन, ठीक है, लिग्निन जैसे सुबेरिन, कुछ ऐसे कंपाउंड्स को पैरेन्काइमा डिपॉजिट करने लगती है। वो कंपाउंड डिपॉजिट होने के बाद ये जो सेल्स अलग हुए थे बिल्कुल, इनका एक जोन ही बन जाता है अलग से, जिसको एब्सेशन लेयर बोलते हैं, और इसके नीचे ही प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी बाद में। तो ये जो एब्सेशन लेयर है ये बिल्कुल इम्परमिएबल हो जाती है, क्योंकि लिग्निन या सुबेरिन की बनी है। ठीक है, तो बीच में वेस्कुलर बंडल भी थे, यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ बंडल्स भी थे। तो बंडल्स के ऊपर भी एब्सेशन लेयर बनी है, नीचे भी। बंडल में प्राइमरी बंडल ब्लॉक हो चुके, सेकेंडरी ब्लॉक नहीं हुए हैं। जब तक सेकेंडरी ब्लॉक नहीं हुए न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं, तो सेकेंडरी बंडल्स भी ब्लॉक होंगे धीरे धीरे। देखिए कॉर्टेक्स तो ब्लॉक हो गया पूरा पैरेन्काइमा की वजह से, क्योंकि एंजाइम्स ने क्या किया, सेल्स को ब्लैब किया, ब्लैबिंग करी और अलग अलग कर दिया, पैक्टिनेज, सेलुलेज, इन सब ने। फिर उन सेल्स के अंदर डिपोजिशन होती रही लिग्निन सुबेरिन की, तो वो थिक होते गए, एब्सेशन जोन बनाया। फिर बंडल्स प्राइमरी तो ब्लॉक हो ही गए थे, सेकेंडरी भी ब्लॉक होते जाते हैं धीरे धीरे। उनकी ब्लॉकेज को टिलोसिस बोलते हैं। पर्टिकुलरली जब वेसल, जब जाइलम ब्लॉक हो जाता है ना, इस तरह से बलून लाइक आउटग्रोथ बन जाती है, जैसे कि कोई गुब्बारे हो अंदर, उनकी वजह से वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसको टिलोसिस बोलते हैं। तो धीरे धीरे पूरा जो लेयर है वो ब्लॉक हो गया, उसको हम एब्सेशन लेयर बोलते हैं, जिसकी वजह से इधर का पार्ट, जहां एब्सेशन लेयर बन चुकी है उसके इधर का पार्ट जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है एक लिमिट के बाद। तो ऐसे एब्सेशन लेयर बनती है। कैसे प्रोटेक्शन लेयर बनती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आल्सो दिस। प्रोटेक्शन लेयर जो होगी सेपरेशन होने के बाद, जैसे ही इधर फॉल ऑफ हो गया, तो ये डायरेक्ट एरिया जो है नेक्ड है, यहां से कोई भी एंटर कर सकता है। इसीलिए फॉल ऑफ से पहले ही प्राइमरी प्रोटेक्शन लेयर तो बन गई थी, क्योंकि ताकि फॉल ऑफ होते ही पैथोजन अटैक ना कर दे, तो प्रोटेक्शन लेयर एक तो पहले ही रेडी थी। ठीक है, फिर अगर और थिक होना है तो कुछ सेल्स दोबारा मेरिस्टेमेटिक होती हैं, जिनको कॉर्क कैम्बियम हम कहेंगे, वो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर भी बना लेंगे। सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर को हम पेरिडर्म भी कह सकते हैं, लीफ की पेरिडर्म। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये स्टेम की पेरिडर्म में ही मिक्स हो जाती है। स्टेम पहले यहां तक था, स्टेम का जो बार्क बनेगा, छाल या पेरिडर्म बनेगी, उसमें ये मिक्स हो गया। तो फर्स्ट ईयर में तो स्टार्टिंग में तो लीफ स्कार दिखते हैं, बाद में फिर क्या होता है, वो मिक्स हो जाते हैं स्टेम के अंदर। दिस इज द एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द लीफ एब्सेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी और द हॉर्मोन्स। So as I told you earlier, ABA, the abscisic acid, and ethylene, it promotes leaf abscission. ये दोनों हार्मोन कराते हैं या चाहते हैं लीफ एब्सेशन हो। साइटोकाइनिन इनडायरेक्टली एंड ऑक्सिन डायरेक्टली। मेन रोल इन द प्रिवेंशन इज ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, ब्लॉक करता है लीफ एब्सेशन को। ऑक्सिन चाहेगा लीफ एब्सेशन ना हो। ठीक है, साइंटिफिकली या एविडेंस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूफ किया गया था कि ऑक्सिन जो होता है ब्लॉक करता है लीफ एब्सेशन को। ठीक है, कैसे प्रूफ किया गया था, कि मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, ये पीटियोल है, ये लमाइना है, यहां एब्सेशन जोन बना हुआ है, दिस वन, पीटियोल से नीचे। तो दो पोजीशंस पे ऑक्सिन को अप्लाई किया जाता है, एक डिस्टल पोजीशन पे, ठीक है, अवे फ्रॉम द स्टेम, और एक प्रॉक्सिमल पोजीशन पे, नियर स्टेम। दो पोजीशन पे ऑक्सिन को स्प्रे किया गया। ऑक्सिन, इफ आई एम शोइंग थ्रू द रेड कलर, तो रेड पोजीशन जो है ये प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है। ब्लू से शो करते हैं हम डिस्टल एंड को, ये डिस्टल एंड, अवे फ्रॉम द स्टेम। ओके,
तो देखिए प्रॉक्सिमल एंड वाला जो ऑक्सिन है, ये रेड कलर का, दिस वन, this does not have any effect in preventing the abscession. It cannot prevent abscession. मैंने अभी बताया ऑक्सिन प्रिवेंट कर सकता है एब्सेशन को, लेकिन वो ऑक्सिन नहीं जो स्टेम साइड में प्रेजेंट है, ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, जो डिस्टल एंड पर है, जिसको डायरेक्ट डाला है इधर फॉल ऑफ वाले रीजन में जो कटा हुआ था प्लांट से, यहां डालने पर ये ब्लॉक कर देता है एब्सेशन को। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सिन कहीं भी हो ऑक्सिन प्रिवेंट कर लेगा, हम ये कहेंगे कि केवल डिस्टल एंड का जो ऑक्सिन है ये प्रिवेंट कर सकता है एब्सेशन को, जो हमने यहां डाला है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इथाइलिन से लिंक। ठीक है, यहां जो ऑक्सिन है ना, यहां पे, ओके, जो यहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, ये इथाइलिन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मान लीजिए यहां लमाइना में इथाइलिन बन गई बहुत सारी, ठीक है, इथाइलिन क्या करेगी? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी, अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसके इफेक्ट को ये वाला ऑक्सिन कम नहीं कर सकता, जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हो सकता है यहां से, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट शो नहीं कर रहा। जबकि यहां ऑक्सिन डालने पर ऑक्सिन रिटार्ड इनहिबिट करता है, इथाइलिन के इफेक्ट को कम कर देगा। तो यहां डालने पर डायरेक्ट जो है वो इथाइलिन के इफेक्ट को कम करेगा, और इथाइलिन सेनेसेंस को या एब्सेशन को प्रमोट करती है, तो उसको इथाइलिन को क्या करेगा? ब्लॉक। तो जहां डायरेक्ट इथाइलिन है वहां उसके एक्शन को ब्लॉक कर सकता है डायरेक्ट डालने पर, यानी डिस्टल एंड पर। प्रॉक्सिमल एंड पर डालने से कोई फायदा नहीं है, उससे जो है एब्सेशन प्रिवेंट नहीं होता। दिस थिंग टू बी रिमेंबर। साइटोकाइनिन कैसे बचाता है? साइटोकाइनिन क्या करता है? सेनेसेंस को डिले करता है। जिस लीफ का एब्सेशन होने वाला था वो बूढ़ा है, उसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ डिग्रेड हो चुका है। तो साइटोकाइनिन जब भी पहुंच जाता है यहाँ पे, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा? एक नई लाइफ दे देगा, नया जीवन दे देगा। वो क्या करेगा? नया क्लोरोफिल बनाएगा। ठीक है, न्यू क्लोरोफिल। न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन करा देगा। न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज, जो न्यूट्रिएंट जा नहीं रहे थे उनको ले जाने में हेल्प करेगा साइटोकाइनिन। ये दोनों फिनोमिना, नया क्लोरोफिल बनाना और न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज कराना, ये दो साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में, रिचमंड एंड लैंग। इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं, जो साइटोकाइनिन की वजह से होता है कि क्लोरोफिल नया बन जाना और न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज हो जाना। साइटोकाइनिन ऐसे प्रिवेंट करता है एब्सेशन को। ऑक्सिन डायरेक्ट प्रिवेंट करता है अगर प्रॉक्सिमल एंड पे ही डाला जाए, सॉरी डिस्टल एंड पर डाला जाए, जहां पे इथाइलिन ज्यादा है वहां डायरेक्ट डाल दिया जाए तो इथाइलिन कम हो जाएगी, ब्लॉकेज भी जो एब्सेशन था वो रुक जाएगा। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्रिवेंट एब्सेशन, ये बचाते हैं एब्सेशन से। अब बात करते हैं इथाइलिन की और एब्सिसिक एसिड की। देखिए कोई बुक्स में दिया होता है एब्सिसिक एसिड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सेशन, इथाइलिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। इथाइलिन जो है प्रमोट करती है एब्सिसिक एसिड के फॉर्मेशन को, इसीलिए एब्सिसिक एसिड भी सेनेसेंस में और एब्सेशन में रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बट इथिलीन इज मोर रिस्पॉन्सिबल इन एब्सेशन। तो एब्सिसिक एसिड पर्टिकुलरली लेयर बनाने का काम करता है, और क्योंकि इसको प्रमोट करता है इथाइलिन, जहां इथाइलिन होगी वहां एब्सिसिक एसिड भी ज्यादा होगा। तो देखिए इथाइलिन करती क्या है? इथाइलिन जो है वो कुछ एंजाइम्स जैसे कि पैक्टिनेज, जैसे कि सेलुलेज, जैसे कि क्लोरोफिलेज, ठीक है, इस तरह के एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। ये इथाइलिन का वर्क है। जहां इथाइलिन होगी फ्रूट राइपनिंग तो करती करती है, उसके अलावा ये फंक्शन करती है क्या कि इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी। जैसे एक्टिवेट करेगी तो लीफ के अंदर क्लोरोफिलेज क्लोरोफिल को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। अगर ज्यादा इथाइलिन बन रही है पत्ते में तो पत्ता सेनेसेंस की तरफ जाने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल तो डिग्रेड हो गया। पैक्टिनेज सेलुलेज वगैरह वो क्या करते हैं? सेल्स को और डैमेज पहुंचाते हैं। पैक्टिनेज मिडिल लैमिला को तोड़ देगा, सेलुलोज सेल वॉल को डिग्रेड करेगा, तो उसकी वजह से सेल्स जो होते हैं वो अनहेल्दी या ओल्ड होने लगते हैं जल्दी। क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाने से प्लांट सेल वैसे ही फूड नहीं बना पाती, फूड नहीं बनाएगी तो जल्दी डेड होने लगेगी। तो इस तरह से फिर ये सेल्स डेड होंगी तो इनके अंदर डिपोजिशन भी होती जाती है सेकेंडरी थिकनिंग्स की, जैसे कि लिग्निन। तो धीरे धीरे ये सेल्स क्या है, एक लेयर बना लेते हैं अलग ही, ठीक है। डेड होने से पहले इनका नंबर भी बढ़ रहा होता है, तो इस तरह से डेंस मास भी बनता है। तो एक पर्टिकुलर एक लेयर बन गई जो कट ऑफ कर देती है बाकी रीजन से। ये जो लेयर बन गई एब्सेशन लेयर बन गई, तो ये लेयर बनी मेनली इथाइलिन की वजह से। और इथाइलिन के पास कोई मैजिकल ट्रिक नहीं थी, इथाइलिन ने इन एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, जिसकी वजह से ये लेयर बनी। तो इथाइलिन जो होता है वो एब्सेशन को कॉज करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड
भी एब्सेशन करता है, क्योंकि जहां इथाइलिन, ठीक है, वहां पे एब्सिसिक एसिड, दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रमोटर है। तो जहां इथाइलिन वहां एब्सिसिक एसिड, क्योंकि वहां एब्सिसिक एसिड भी है तो वहां पर्टिकुलरली एब्सेशन लेयर जो बन रही है उसमें एब्सिसिक एसिड का भी रोल है। तो ये दोनों एब्सेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जबकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं, प्रिवेंट। कई बार नाम पूछे जाते हैं ऑक्सिन्स के, तो नेचुरल ऑक्सिन जैसे कि IA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। कुछ और ऑक्सिन भी होते हैं IBA एंड 4-chloroindol एसिटिक एसिड लाइक इन लेग्यूम्स, बट मेनली जो होता है नेचुरल फॉर्म जो होता है वो IA होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड विच इज अ नेचुरल प्लांट हार्मोन ऑक्सिन या नेचुरल ऑक्सिन होता है। सो दिस प्रिवेंट द एब्सेशन। साइटोकाइनिन आल्सो प्रिवेंट द एब्सेशन, इथिलीन एंड ABA प्रमोट्स द एब्सेशन, ये करते हैं। सो दिस इज द हार्मोनल एस्पेक्ट। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि फोटोपीरियोडिज्म और टेम्परेचर, ये भी एब्सेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर कोई लॉन्ग डे प्लांट है उसको शॉर्ट डे कंडीशन देने लग जाए तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उसके लीव जो है वो जल्दी सेनेसेंस्ड होते हैं, जल्दी एब्सेशन शो करते हैं। डार्क नाइट देने लग जाए आप ज्यादा ही, ठीक है, तो लीव जो होंगे वो जल्दी बूढ़े होंगे। टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो भी एब्सेशन तेजी से होता है, ठीक है। सर्टेन केमिकल्स आप डाल देते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, तो भी एब्सेशन हो सकता है, यंग लीव्स का भी। सो दे आर सम वेरियस फैक्टर विच आर इंड्यूस्ड फैक्टर आल्सो इंड्यूस किए जा सकते हैं, या एबायोटिक फैक्टर जैसे कि फोटोपीरियोडिज्म, टेम्परेचर, ये भी एब्सेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नेचुरली तो क्या है, आपके हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं, कैसे वो एनाटॉमिकली एक लेयर बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से एंजाइम्स को जैसे पैक्टिनेज, सेलुलेज इनको एक्टिवेट करते हैं, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ लीफ एब्सेशन। सो I hope my explanation about this leaf abscission have solved your all the doubts. So thank you. That's all for today.